स्टार्ट करो। An example of it is the use of age-old Hindi and Kshitij used in southern region. These were used as documents to facilitate फैसिलिटेट। facilitate transfer of money from one end to another for trading activities. As an instrument of exchange, it involved a contract which warrant the payment of money, the promises of order which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation. Why? यहाँ तक हो गया ट्रेडिंग एक्टिविटीज तक। Why there was a need of create an intelligible form of exchange of money. It was so because traveling a long distance either by land or sea involved risk of theft and robbery. Hindi, which literally means to collect, was written in वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। vernacular language and facilitated the safe transfer of money between parties and helped promotion of trading activities. सिट डाउन। नेक्स्ट। द इमरजेंस से होगा। द इमरजेंस। The emergence of credit transaction and availability of loans and advance financed commercial operations. Indian sub Indian subcontinent enjoyed the fruits of favorable balance of trade, where export exceeded import with large margins, and the indigenous banking system benefited the manufacturers, traders, and merchants with additional capital funds for expansion and development. Commercial and industrial banks later involved financial trade and commerce with agriculture banks to provide both short and long-term loans to finance agriculturists. नेक्स्ट। Many leading trading centers were developed in ancient times for the import and export of goods. Some of them were Patliputra, Peshawar, Taxila, Indraprasth, Mithila, Maduram, Surat, Ujjain, Kanchi, Mithila. Major exports items were spices, wheat, sugar, indigo, opium, sesame oil, cotton, parrot, live animals, and animal products, etc. Major imports were horses, animal products, Chinese silks, linen, wine, gold, silver, copper, etc. There were all kinds of towns: port towns, manufacturing towns, mercantile towns, the sacred center, and pilgrimage, pilgrimage towns. Their existence is an index of prosperity of merchant communities and professional classes. सिट डाउन। नेक्स्ट। बिजनेस एक्टिविटीज। This activity led to the growth different led to trade such as the transportation, banking, finance, and the communication which give the sport प्रॉस्पेक्ट्स। sports take training activity with the activity concentration of Indian traders and other with marching communication, the Indian sub communication by the
properly called here, and the summer deeply in the waiting of many travels such as fix finding नाम है मेगास्थेन्स फैक्सियन। जिनजैंग लिखा हुआ है। then human cables and prince 11th century I being 11th century for man fiction 7th century and other बस यहीं तक करो। आओ तो respect जाओ जाओ, तो रिपीटेडली से आगे पढ़ो। बुक निकाल लो, रीडिंग करो घर पे। रीडिंग करने के साथ साथ ना, अच्छा तुम लोग के पास देखो अटक रहे हो, वो पीछे गेट सही कर बंद कर देना गेट। अब तो कोई आएगा नहीं ना बैच में, गेट बंद कर दो। हम लोगों के टाइम पे ना वो लैपटॉप तो इंट्रोड्यूस हो ही गया, तो उस टाइम पे एक डिक्शनरी आता था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके साथ एक सीडी मिलता था, और उस सीडी को इंस्टॉल करने पे उसमें ना जो भी वर्ड्स यहाँ पे हमें नहीं पता होता था उसको हम लोग उस पर सर्च कर लेते थे, डाल के तुरंत बता देते। साथ ही साथ उसको जब क्लिक करते थे तो कैसे बोला जाता है ये प्रोनाउंसिएशन भी आता था। सही है ना? अभी क्या है, उससे आसान हो गया है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, जस्ट गो टू गूगल, सर्च द वर्ड, यू गेट द वर्ड, प्रोनाउंसिएशन भी वहां पे आ जाता है। सोचो, पहले से चीजें सीखना आसान हुई कि नहीं? तो सीखेगा कौन? जो चाहेगा सीख। सिंपल। तुम अगर चाह रहे हो अपने आप को प्रोग्रेस करना, कर लोगे। तुम नहीं चाह रहे हो अपने आप को प्रोग्रेस करना, वहीं अटके रहो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया आगे निकल जाएगी, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आपसे बेटर हो जाएंगे। और अपग्रेडेड लेवल का वैल्यू है, मालूम है? आप अपनी वैल्यू कितना बनाएंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है? पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स शुरू में आपके पीछे लगेंगे कि तू पढ़ ले अच्छा से, तेरा ही नाम हो जाए, तेरा नाम होगा तो पेरेंट्स का नाम हो गया। सही सी बात है, सही है ना? खुद के करियर के बारे में सोचना, बी सेल्फिश राइट में, खुद को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। तो ये पहला दिन है, हर दिन इंप्रूवमेंट नजर आना चाहिए, थोड़ा ही इंप्रूवमेंट हो बट दिखना चाहिए कि आप पढ़ के आ रहे हो, रीड करके आ रहे हो, पहले से कम अटक रहे हो, पहले से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट वॉइस आ रहा है। समझ रहे हो ना? ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है? रीडिंग तो ऐसा रीडिंग का लेवल होना चाहिए जिसमें हमको लगता है कि आई विल हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। क्यों? न्यूज रीडर को देखते हो, न्यूज रीडर कैसे रीड करते, इंग्लिश न्यूज रीडर, बैठ के सुना करो 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं, जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, कैसे इस तरीके से रीड करना। रीडिंग वो है एक्चुअल में, रीडिंग वो भी रीड करते हैं, मालूम है? वो कैमरा पीछे लगा होता है और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है ना? और वैसे पढ़ते हैं, कैमरा में रीड करते हैं, रिएक्शंस देते हैं, सब कुछ। ठीक है? वर्ड्स को फील करके बोलते हैं। तो खैर अभी वर्ड्स की फीलिंग तो दूर है, क्यों? क्योंकि आप वर्ड्स समझ ही नहीं रहे, तो अभी सिर्फ रीडिंग अच्छा हो जाए। ठीक है? तो ये चीज होनी चाहिए कि हमको उस लेवल पे जाना है। ठीक है ना? चलो, ये सब कुछ ना इंग्लिश वाले टीचर को कराना चाहिए था। ठीक है ना? लेकिन क्या करें, हमको इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का मतलब ग्रामर हो गया और क्वेश्चन आंसर करा दिया गया, बस यू विल पास द एग्जाम। Between the first and the second century CE, मुझे लगता है कि तुमने इधर कर दिया, दे रिपीटेडली से होगा। there will be the prosperity of the country. प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, उसके बाद शायद यहाँ नीचे हो, नहीं नीचे नहीं है, यही है। ठीक है? Between the first and बिटवीन द the फर्स्ट एंड द 7th सेंचुरी। बुक होना चाहिए, आप अपना बुक लेके आइएगा। अभी थोड़ा सा स्लाइड करने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, बुक लेके आएंगे तो खुद का पढ़ेंगे। of the second and medieval world control about first and third and 14th of the world's ठीक। घर पे भी इतना वॉइस रहता तुम लोग का? एवरीबॉडी घर पे तो मम्मी पापा बोलते होंगे कि शांत हो जा, चुप हो जा।
ऐसा ही है ना। चलिए पहले अभी तक जहां तक हुआ है वहां तक पहले डिस्कस कर लें हम लोग। टॉपिक हमारा है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अब ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम है क्या, इसके बारे में आज का डिस्कशन है। देखो ओल्ड एज टाइम से हुंडी चिट्टीज इन सब का इस्तेमाल होता जा रहा है। अब ये हुंडीज चिट्टीज क्या है, व्हाट आर हुंडीज एंड चिट्टीज, तो कहा जा रहा है दीज वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। डॉक्यूमेंट है, चेक समझते हो, बैंक का चेक समझते हो, तो बैंक का चेक क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो हुंडीज और चिट्टीज भी एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट्स। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इट्स समथिंग अ पेपर टाइप। आगे इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में आगे कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये करता क्या, फैसिलिटेट करता है। किस चीज को फैसिलिटेट करता है, ट्रांसफर को। किस चीज का ट्रांसफर, मनी का। और ये मनी ट्रांसफर कैसे होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। क्यों ट्रांसफर होगा, व्यापार हुआ है इसका। आगे समझिए, आगे चलो। एज एन इंस्ट्रूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के लिए यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज हुआ ना, पैसे के आदान प्रदान का एक इंस्ट्रूमेंट है। चेक अगर किसी को आप देते हो तो चेक का पेमेंट आ जाता ना उसके पास। तो अगर हुंडीज और चिट्टीज आपने किसी को दिया है तो उससे उसको पेमेंट रिसीव होगा उस डॉक्यूमेंट से बदले। सो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ये कॉन्ट्रैक्ट है that warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें होना क्या है, पैसे का पेमेंट होना है। और ये जो पैसे का पेमेंट है, ये पेमेंट ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है उस डॉक्यूमेंट में, और ये या फिर प्रॉमिस होगा या ऑर्डर होगा, दो ही चीज हो सकती है। प्रॉमिस और ऑर्डर में फर्क क्या है, हमने तुमको बोला तुमको 10,000 रुपये पेड कर देना 10 तारीख को, इट्स एन ऑर्डर। वो हमको बोल रहा है सर 10 तारीख को फीस पेड कर देंगे, इट्स अ प्रॉमिस। फर्क पता चला। तो ये दोनों ही हो सकता है, हुंडीज और चिट्टीज कैन बी बोथ, प्रॉमिस हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है। अगर हमने आपको उधार दिया है तो हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं पेमेंट करने का, और आप हमसे रिक्वेस्ट करके उधार लेके जा रहे हो तो तुम खुद प्रॉमिस कर रहे हो कि हम पेमेंट करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। इसी का एडवांस वर्जन आप लोग पढ़िएगा अकाउंट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th का वन ऑफ द टफ चैप्टर। टफ है मतलब ज्यादा मेहनत करने वाला चैप्टर। टफ का मतलब ये नहीं कि समझ नहीं है। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स है कैसा होगा, अनकंडीशनल। कंडीशनल समझ लो, अनकंडीशनल समझ आ जाएगा। कंडीशनल ये बोल रहा सर 10 तारीख तक पैसा आ जाएगा ना तो पेड कर दे, 10 तारीख तक पैसा आएगा तो ये पेड करेगा। क्या है ये, कंडीशनल है, आएगा तब पेमेंट करे। लेकिन ऐसे बोला सर 10 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे, इज देयर एनी कंडीशन है, इज दैट क्लियर। तो पेमेंट कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल। फिर आगे कह रहे हैं कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशंस, जिसको आप बदल भी सकते हो, जिस ट्रांसफर को आप बदल सकते हो, लेकिन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। जिनसे आपका लेन देन है उनके साथ आपको बातचीत करके क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। व्हाई देयर वाज अ नीड टू क्रिएट एन इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। अब सवाल एक राइज किया गया है कि क्यों हुआ ऐसा कि हमें एक पेपर के फॉर्म में मनी को कन्वर्ट करना पड़ा एक्सचेंज के लिए, क्यों करना पड़ा, सीधा पैसा ही एक्सचेंज कर लेते है ना, क्यों करना पड़ा ऐसा। इट वॉज सो बिकॉज ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईदर बाय लैंड और सी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी। पैसा लेके जा रहे हो, चोरी हो जाएगा। बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, अभी कहीं से 10 लाख रुपए का उसका बिजनेस बना, अब वो 10 लाख कैश लेके जा रहा है, चोरी होने का चांस है ना। अभी 10 लाख का हुंडी लिखा के जा रहा है, यहां से वहां पहुंचेगा, वहां के ऑफिस से वो कलेक्ट कर लेगा पैसा। और अगर बीच में हुंडी चोरी भी हो गया तो बात कर लेगा, मिल लेगा जाकर के, पेमेंट उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो लिखा रहेगा ना कि इस पर्सन को पेमेंट मिलना है, और वो पर्सन है ही नहीं। तो रिस्क से बचने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया हुंडी, जिसका मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट। ये लिखे होते हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में,
अब देखो ना एनसीईआरटी में जो वर्ड्स यूज होते हैं ना दैट इज ऑफ वेरी स्टैंडर्ड इंग्लिश। रेफरेंस बुक में ना आसान आसान वर्ड भी यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज हुआ है पूरे बुक में। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बुक पब्लिश होती है उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होता है। वर्नाक्युलर की जगह पे लोकल लैंग्वेज लिख देते तो ज्यादा समझ में आ जाता ना। क्या लिखा, मीनिंग क्या है, लोकल लैंग्वेज। लोकल मतलब उस एरिया में जो भाषा बोला जाता है ना उस लैंग्वेज में लिखा जाता है। एंड फैसिलिटेटेड, और ये जो हुंडी है ये सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी को फैसिलिटेट करता है बिटवीन पार्टीज, और इससे प्रमोशन हुआ, व्यापार का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। पहले से ज्यादा आसानी से रिस्क फ्री अब बिजनेस कर सकते कि नहीं। पहले जो लोग सोचते थे कि 5 लाख रुपया कैसे कैरी करके लेके जाएंगे, उनके लिए अब ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा था नहीं, करोड़ों रुपए का भी ट्रांजैक्शन कर सकते लोग। तो बिजनेस यानी व्यापार जो है ना वो फैसिलिटेट हो गया हुंडीज और चिट्टीज की वजह से। The emergence of credit transactions and availability of loans and advances enhanced commercial operations। अब उसके अलावा देखो व्यापार में जब से उधार देने का परंपरा स्टार्ट हुआ है, लोन्स का फैसिलिटीज एक्सटेंड हुआ है। आज के डेट में आप देखेंगे ना कि हर कोई जिनके पास पैसा नहीं भी है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, उनकी सेविंग बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर ऑल्सो अफोर्डिंग सम गुड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। आया ना, बजाज कार्ड बनवा लीजिए, 10% पेमेंट अभी कर लीजिए, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। अभी एक बार किसी कोई मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसका इनकम नहीं है, उतना सेविंग नहीं होता उसके पास कि एक बार में 20-25 हज़ार सेविंग हो जाए। और अगर वो उतना बचाना शुरू करे तो उनको लगेगा 15 महीना, 15 महीना वेटिंग पीरियड है, और उस 15 महीना में बीच में कोई और सिचुएशन आ गया तो खर्चा हो जाना है। अभी क्या है, प्रोडक्ट लेके जाइए, 10% पेमेंट कीजिए, हर महीने 1000 रुपया पेमेंट करिए, प्रोडक्ट आपके हाथ में। तो लोन फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज की वजह से बिजनेस क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, बढ़ा है। द Indian subcontinent enjoyed the fruits of favorable balance of trade where exports exceeded imports with large margins, and the indigenous banking system benefited the manufacturers, traders and merchants with additional capital funds for expansion and development। क्या कह रहे हैं, ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, इसको इंजॉयड मतलब पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट में इन्होंने इंजॉय करा है। क्या इंजॉय करा है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक सवाल अराइज हो रहा है कि सर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्हाट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, एक क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये बन रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, क्या यूज हो रहा है। तो हम यहां से अगर गुड्स विदेश भेजा तो इसको हम सेल्स नहीं बोल के एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अगर हमने विदेश से गुड्स मंगवाया है तो उसे परचेज ना बोल के हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हम फायदे में रहे क्योंकि हमने ज्यादा बेचा, मंगवाया कम। इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। तो हम कह सकते हैं ना, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ट्रेड सरप्लस, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट। इज दैट क्लियर, आगे चलें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहा है पास्ट में, अभी की बात नहीं कर रहे। अभी क्या है, आप जाके सर्च कर लीजिए, आर वी इन फेवरेबल बैलेंस ऑफ, आर वी इन सिचुएशन जहां पे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, पता चल जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो फेवरेबल है, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, अनफेवरेबल। तो यहाँ पे इसको देखो, अब ये बात ना जो हमने भी आपको बताया, यही बात आगे एक्सटेंड करके लिख भी दिया गया, वेयर एक्सपोर्ट एक्सीडेड इंपोर्ट्स विद लार्ज मार्जिन्स। मतलब ज्यादा मार्जिन से कौन ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, किससे,
इंपोर्ट से, और इसी चीज को क्या बोला गया था? ठीक है, आगे चलो। और सिर्फ एक्सपोर्ट के ज्यादा होने की वजह से नहीं व्यापार बढ़ा, बल्कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की वजह से भी ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आपने अभी जस्ट पढ़ा। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ने मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट दिया, ट्रेडर्स यानी व्यापारियों और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को भी बेनिफिट दिया है। साथ ही साथ एडिशनल कैपिटल फंड भी इसकी वजह से आया, फंड भी एक्स्ट्रा आया, और एक्स्ट्रा फंड जब आता है तो बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, व्यापार एक्सटेंड किया जा सकता है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक लेटर इवॉल्व टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agricultural banks to provide both short-term and long-term loans to finance agriculturalists. अब देखो वहां तो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये आ रहे हैं आज के बाद, आज के दौर में किस बैंक की बात हो रही है? एक इंडस्ट्रियल बैंक और दूसरा कमर्शियल बैंक। ठीक है, अभी ये जो दोनों बैंक है ना, इनका काम क्या है? इनका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना, फंड्स प्रोवाइड करना। किस लिए? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। किनको किनको प्रोवाइड करते हैं? जो खेती करते हैं, किसान को। फॉर्मर्स ना लिखे क्या लिखा? एग्रीकल्चरिस्ट। आगे चलें। मेनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स को डेवलप किया गया है एंशिएंट टाइम में फॉर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी पहले बहुत सारे जो लीडिंग ट्रेड सेंटर्स थे ना, उनको डेवलप किया गया था पास्ट में, एंशिएंट टाइम्स में। किस पर्पस के लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए। कुछ नाम आ रहा है वहां पे, यानी ऐसा कौन कौन सा ट्रेड सेंटर्स है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्पस के लिए ही डेवलप करा गया? कौन कौन है? पाटलिपुत्र है, पेशावर है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मिथिला है, मधुरम है, सूरत है, उज्जैन है, कांची है, मिथिला है। मिथिला यहां तक हो गया। उसके आगे क्या कह रहे हैं? मेजर एक्सपोर्ट आइटम। अब यहां तो हो गया कि कौन कौन सा सेंटर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। दूसरा सवाल है कि क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? स्पाइस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। और इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क्स, linen, wine, gold, silver, copper. There were all kinds of towns, ports towns, manufacturing towns, mercantile towns, the sacred centers and the pilgrimage towns. यानी अब कहा जाए कि जो शहर है ना, उन शहर को अलग अलग नाम से यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया। पोर्ट टाउन कह रहे हैं, जाहिर सी बात है बंदरगाह के करीब होगा ये शहर। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स कह रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, वहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर होता होगा बड़े लेवल पे। ठीक है ना। उसी तरीके से मर्केंटाइल टाउन्स यहाँ पे कह रहे हैं। मर्केंटाइल टाउन्स का मतलब जहाँ पे बिजनेसमैन लोग रहते होंगे, जहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे। देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। तो इन टाउन्स का एग्जिस्टेंस ये बता रहा है कि उस एरिया में मर्चेंट कम्युनिटीज डेवलप हो गए हैं, प्रोफेशनल क्लास के लोग डेवलप हो गए हैं, और ये काफी खुशहाल होंगे उस एरिया में। आगे, बिजनेस एक्टिविटीज लेड टू दी ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड सच एज। अच्छा, क्वेश्चन लिखते चलो ना, भूल जाओगे वरना। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, पहला क्वेश्चन। लिख लिए? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। What is the meaning of favorable balance of trade? What is the meaning of favorable balance of trade? जी अस्सलाम वालेकुम। ना कल नहीं हुआ था, आज भेज दे रहे हैं। कितना बजे भेज दें? नंबर नहीं पता हमको, आपको
नंबर लगा हुआ नहीं होगा, हमको लगता है कल बात किए थे ना आपसे। ना ना, कल नाम नहीं बताया था। हाँ ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना। हाँ 1 बजे नंबर आएगा, 1 बजे, 1 बजे। हम्म। लिख लिए। व्हाट डू क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? उसके अलावा जब तुम लोग पैराग्राफ पढ़ो ना, और अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है ना, तो राइट इट डाउन ऑल्सो, क्योंकि जितना डिटेल से आपको चीजें पता होंगी ना, उतना बेटर होगा आपके लिए। हाँ बोलिए। नाम लिख दीजिएगा, सरफन लिख दीजिएगा ना, सरफन बानो, सरफन बानो लिख दीजिएगा। अब देखो, जब बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हुआ क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से ग्रोथ देखने को मिला है, डिफरेंट एड्स टू ट्रेड, यानी व्यापार को बढ़ाने वाले और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिजनेस जो बढ़ता है ना, वो कई रीजन से बढ़ता है। मतलब अगर हम बात करें, कल हम लोगों ने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा था, क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड, अभी कॉमर्स में पता है क्या क्या आ जाता है? कॉमर्स में आ जाता है एड्स टू ट्रेड। क्या आ जाता है? कॉमर्स सिंपली मींस व्हाट? एड्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड को सपोर्ट करने वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कॉमर्स में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बैंकिंग, जैसे इंश्योरेंस, जैसे वेयर हाउसिंग, जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह। ये सबसे बिजनेस प्रमोशन होता है ना, हेल्प होता है ना बिजनेस में, इस ट्रेड में हेल्प होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड या कॉमर्स। तो वही यहां पे कह रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना, इसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिला है एड्स टू ट्रेड में, यानी ट्रेड को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, विच ग्रीव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इनके बढ़ने से, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बेटर होने से, बैंकिंग फैसिलिटी बेटर होने से, फाइनेंस और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेटर होने से हुआ क्या? बिजनेस बढ़ा है ना, पहले के कंपैरिजन में बिजनेस बढ़ा है ना। आगे देखें, विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड अदर मर्चेंट कम्युनिटीज, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज पॉपुलरली कॉल्ड। अच्छा, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हैं उस टाइम पे, इसलिए इंडिया को उस टाइम पे किस नाम से जाना जा रहा था? या स्वर्णद्वीप। बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इसको इस नाम से पुकारा है। कौन कौन है ऐसे ट्रैवलर्स? मतलब पहले, हर आज भी लोग ट्रैवल करते ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते। पहले क्या था ना, मेनली उतना ट्रैवलिंग उतना ज्यादा नहीं था, घूमने फिरने के पर्पज से बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, रिसर्च के पर्पज से जरूर जाते, पता लगाने जाते थे कि बंगाल है तो कैसा है, इंडिया का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वहां बिजनेस बहुत बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, चलो पता लगाते। तो वो जब अपना बुक्स लिखते थे ना, तो उसमें इस तरीके के टर्म्स यूज करते थे। तो कौन कौन से ऐसे ट्रैवलर्स रहे? मैक्सथेंस, मेगास्थेंस है, फैक्सियन है, जोनजांग है, एल्बेरोनी है 11th सेंचुरी का, इब्न बतूता है वो भी 11th सेंचुरी का, फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस है 17th सेंचुरी का, और ऐसे कई सारे लोग हैं। इन लोगों ने बार बार यही बताया दैट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री बिटवीन द फर्स्ट एंड द 7th सेंचुरी सी, इंडिया इज। प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री के बाद क्या गया? नीचे तो नहीं है, नहीं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, दे रिपीटेडली रेफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यानी यहां पे बताया जा रहा है, ये जो वर्ड है ना, कौन सा वर्ड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? खुशहाली इंडिकेट कर रहा है उस एरिया कि वो एरिया काफी तरक्की कर गया है बिजनेस में, व्यापार में। फर्स्ट और 7th सेंचुरी सीई में इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड। उस टाइम पे एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा है, कंट्रोलिंग अबाउट
1/3 and 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। इतने धनी थे हम। कुछ यहाँ पे डेटा आपको दिया गया है, देख लीजिए डेटा। वर्ल्ड इकोनॉमी का डेटा है। 1 AD में कितना रहा है? द लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन 32%। 1000 AD में 32%। 1500 AD में 24.36%। सेकेंड लार्जेस्ट हुआ। फिर 1600 AD में 24.41। 1700 AD में 24.46। 1700 to 1750 AD में 25%। 1850 में 5 to 10%। 1870 में 9.2%। 1980 में 1900 AD में 2% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। 1913 में 5.4% ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर था ना। 1991 में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ है। 1973 AD का डेटा है 3.1% का ग्रोथ, एंड 1952 का डेटा है 3.8% ऑफ वर्ल्ड इनकम। अभी यहाँ पे हम लोग 32 हाईएस्ट कितना गया? 32%। 32% से अभी कितना आ गए? एंड द प्रॉब्लम इज कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे वापस से नहीं जा सकते, जा सकते। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर इंसान का माइंड वर्क करना बंद हो जाए तो क्या होगा? खत्म हो गया वो। एक नेशन का माइंड है वहां का पॉलिटिशियन। देश का माइंड क्या है? पॉलिटिशियंस। वो पार्लियामेंट में बैठ करके रूल्स रेगुलेशंस ड्राफ्ट करते, कानून बनाते हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन में हालांकि कहा तो ये जाता है कि कानून का जो पालन है वो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पता है एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ओथ तो लेते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसका, कि संविधान की शपथ लेते हैं, इसकी मर्यादा का पालन करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अंडर द टेबल ये बात हिडन होता है कि हम इस संविधान को जो इम्प्लीमेंट जो जो हमारे जो लीडर चुन के आएंगे हम उनका पालन करेंगे, उनके हुक्म का पालन करेंगे, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग से बचेंगे। इस चक्कर में फंस के रह जाए। ठीक है, अभी ऊपर वाले से लिया गया ओथ तो लोग फुलफिल ही नहीं करते, नीचे वाले किसी किसी किताब से क्या डरे, है ना। सम ऑफ द बिलीवर्स जो हम अपने आप को कहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं मरने के बाद पाप होगा, पुण्य होगा, सजा मिलेगा, ये होगा वो, उसका तो लोग सोचना छोड़ दिए। और यहाँ धरती पर के किताब का कौन फोकस करने वाला। पॉइंट ये है कि अगर वापस से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस विल पावर वाले आ जाए, उतने ऑनेस्ट और डेडिकेटेड हो जाए, जिनके लिए कंट्री का रियल मानों में डेवलपमेंट हाईएस्ट लेवल पे होगा, रादर देन कि देयर ओन एजेंडा। ठीक है, ओन एजेंडा क्या होता है? ओन एजेंडा बस यही है कि हम ही रूल करें, और कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर सामने वाला हमसे बेटर है तो उसको रूल करना चाहिए। समझ रहे हो? अभी सामने वाला हमसे बेटर है, ये वाला थॉट अभी आने में जमाना लगेगा। इसके लिए चाहिए मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इसके लिए लोगों को चाहिए विलिंगनेस। अभी लोग पहले ही से बोलेंगे आएगा ही नहीं तो नहीं आएगा। अब तुम कह रहे हो कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन लोग जब कहना शुरू कर देंगे कि ऐसा दौर और ऐसा वक्त लाना है हमको, तो ले आएगा। टाइम लगेगा, सिंपल। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि हमेशा से गोल्डन एरा ही रहा है। गोल्डन एरा, फिर डाउनफॉल, फिर इंप्रूवमेंट, फिर डाउनफॉल, ये चलता है। हार्ट बीट ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे हो गया तो फिर गया। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ द लाइफ। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? यहीं तक ना? यहीं तक किया था ना? हाँ, इसके आगे भी पढ़े हो? नहीं ना? और ये बीच बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये उन एरियाज के बारे में डिस्कशन है। मिथिला है या उज्जैन है या सूरत है या कांची है या मदुरा है या ब्रोच है या फिर कावेरी पट्टा है या तम्रलिप्ति है, नाम भी अजीब अजीब है। पाटलिपुत्रा, पेशावर, टक्सिला,
तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, वाराणसी, ये सब मेजर ट्रेड सेंटर्स जो एंशियंट टाइम्स के मेजर ट्रेड सेंटर है ना, उसका थोड़ा सा डिटेल नीचे में दे दिया, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर में जो बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हुंडीज, हुंडी एक्ट प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज, जिसमें नाम आया कुछ कुछ, जैसे देखो कितने तरह का हुंडीज है। क्या नाम है ये? धनी जोगी, ये दर्शनी हुंडी है। दर्शनी हुंडी का मतलब क्या है? पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर रिसीव्ड पेमेंट। किसी भी पर्सन को इसका मतलब दर्शन दे दिया इस हुंडी ने ना, तो पैसा दे दीजिए, कौन लेके आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। फिर है सहयोग, ये भी क्या है? दर्शनी है। पेबल टू एस, लेकिन ये क्या है? अगर धनी जोगी है तो किसी को भी मिल जाएगा, मतलब जिसके पास है ना वो, उसी को वो वेल्थ मिलना है। लेकिन अगर सहयोग है तो उसमें एक नाम लिखा होता है, उसी को मिलेगा पेमेंट। फिर है फिरमन जोग, ये भी दर्शनी है। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर होगा तब उसको पेमेंट मिले। फिर है देखन हर, यानी दर्शनी हुंडी, ये भी है। पेबल टू दी प्रेजेंटर और बियरर, जिसके पास ये है या जिसने इसको प्रेजेंट किया है उसको पेमेंट मिल जाएगा। फिर है धनी जोग, मुद्दती, मुद्दती है, इसका मतलब क्या है? इसमें ड्यूरेशन मेंशन हो। पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर रिसीव्ड पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स टर्म पे ही पेमेंट होना, इसलिए इसको मुद्दती। कैसे यहाँ पे मुद्दती लिखा ना, इसका मतलब है कि टाइम बॉन्ड होगा, और दर्शनी लिखा ना तो उसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं। फिर मान जोग भी मुद्दती है, यानी ये भी हुंडी है, ये भी ऑर्डर पे पेड होगा लेकिन एक फिक्स टर्म पे, ड्यूरेशन मेंशन है, उसी के बाद पेमेंट होना। जैसे 1 महीना ड्यूरेशन लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास आज भी है ना, तो पेमेंट कब मिलना है उससे? 1 महीने बाद। फिर जोखमी है, ये भी मुद्दती हुंडी है। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, अगर गुड्स लॉस हो गया ना ट्रांजिट में, द ड्रॉर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट, जिसने बिल ड्रॉ करा है ना, मतलब जोखमी मुद्दती। एक ये जोखमी क्या है? एक तरह का हुंडी है, और इसमें मुद्दती मेंशन्ड है, दैट मींस कि टर्म एक टाइम ड्यूरेशन पे पेंड होगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जोखमी इसलिए बोला गया ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खतरा है। क्या है? कुछ ना कुछ जोखिम। जोखिम का मतलब क्या होता है? रिस्क। तो रिस्क क्या है? यहाँ पे गुड्स भेजा है ना, उसके अगेंस्ट ड्रॉ किया है। अगर रास्ते में गुड्स लॉस हो गया तो द ड्रॉर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट, जिसके पास वो, जिसने बिल ड्रॉ किया है उसका गया, या वो बिल जिसके पास है उसका गया, उसका पैसा डूबा। क्लियर है? तो ये था टाइप्स ऑफ हुंडी। आज के डेट में ना इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो पढ़ोगे आप लोग अकाउंट्स में। तो दिक्कत है निवन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में बेटर रीडिंग कैपेबिलिटीज के साथ आइएगा, और वॉइस वगैरह इंप्रूव्ड रहेगा। हर दिन इंप्रूव करना है, ठीक है? बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ अगर नहीं है तो वो चीज़ अचीव करना है, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है, आपके पास लेस अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप कुछ सेक्टर में दूसरों से बेटर नहीं है तो उन सेक्टर्स की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आपका बढ़ सकता था वो नहीं बढ़ा। बाकी तो सारा वही बेनिफिट मिला जो दूसरे को मिला।